Human beings are meant to do creative jobs. Everything else will be overtaken by machines in a longish period of time. And that has been happening from the time human beings invented wheel. Slowly but steadily, on all non-value adding jobs are outsourced to machines. There are lots of names ahead of marketing now, and I find it a bit funny because we have now started attaching channel names ahead of marketing. So we call it digital marketing, performance marketing, etc. While the fact is that in the olden days also people never used to call themselves as radio marketer, TV marketer, cinema marketer. They were marketers. When I say there is a lot of science behind advertising, mean is that a significant part of advertising, if you do it in a scientific manner, you are more likely to succeed. Your probability of success goes significantly higher. Yeah. And that science has 3 pillars. Hello guys and welcome to Just Curious podcast where we decode the mindset of our guest through curiosity. और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। मान लो कोई एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पे वो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, पर उस कंस्ट्रक्शन साइट का फाउंडेशन बहुत वीक है, तो क्या वो मल्टी फ्लोर बिल्डिंग बना पाएंगे उसके ऊपर? नहीं, राइट, क्योंकि वो बिल्डिंग गिर जाएगी, बहुत रिस्की हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपके भी फाउंडेशंस अगर वीक है, जिस भी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो, एस्पेशली इन माय ओपिनियन मार्केटिंग के अंदर, तो आपका करियर ग्रोथ भी एक रिस्की ट्रेजेक्टरी के ऊपर चला जाएगा। आपका करियर ग्रोथ भी स्टैग्नेंट होने के चांसेस है। बट हे, डोंट वरी, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ है सुदीप चावला, हु इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग एंड सर्विसेज इन पिडिलाइट, और जो इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 17 सालों से काम कर रहे हैं। एंड ही हैज़ ऑल्सो वर्कड ऑन ब्रांड्स लाइक कैडबरी एक्लेयर्स, जेम्स एंड डॉक्टर फिक्सिट की ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के ऊपर। तो सुदीप जैसा एक एक्सपीरियंस मार्केटर आपको आज इस एपिसोड में बताएगा ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में, और वो भी बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में थ्रू डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स। सुदीप ने ये भी बताया कि आप इस नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो इन रियल लाइफ मार्केटिंग सिचुएशंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मी एंड सुदीप हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ एआई विल अफेक्ट मार्केटिंग इन नियर फ्यूचर। क्या एआई मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों की जॉब ले लेगा? तो अगर आपको एक अच्छा मार्केटर बनना है, then this is your chance to learn from top 1% of marketing mentor in India, and that too in free. और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हो, then make sure you subscribe to our channel because we release podcast every Monday at 7:15 p.m. Now it's time for most beautiful and insightful conversation around branding and marketing with Sudeep Chawla, only on Just Curious podcast. Hello Sudeep, welcome to the podcast. Welcome to Just Curious. Thank you, Utsav. Glad to be here. People, often approach people with this approach that I want to get something from him or her when they are networking with people or anything. But I think the main key is you have to add value to that person, and they will automatically, start, networking with you or interacting with you. I think so. Correct. Yeah. I also believe that. So one of the mentors of mine, somebody whom I used to really respect, he's no longer in this world, Mr. Chandramouli. He had once taken a workshop and he used to speak about his extraction from Gita. Okay. And he said that he had this conundrum that Krishna, who otherwise was very result oriented, and we all know that in various places Krishna employed various tools to get to the result that was the right result. If somebody as result oriented as him, why would they say कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा ना करो? ऐसा कैसे हो सकता है? Why would somebody do this? And he said that he went through various iteration, he spoke to a lot of people, and then he understood that concentrating on your work or your input
is the only way to get to desired output. Right. So even if you desire a certain output, that should lead you to concentrate only on input. Hmm. And hence, coming back to what you were saying, even if you desire something from the other person, don't focus on that desire. Right. Focus on what you can give so that you can get. Right. Right. This is so true. I think this reminded me of what Dhoni said Hmm, when someone asked him that why you are so cool on the field. And he just simply said this, that I just don't focus on results. I just focus on the process. I'm process. just thinking about the next ball, how I'm going to hit that ball. I'm focusing on what I can control. Correct. When you focus on what you can control, everything will become easier. True. Correct. Now you have enough amount of experience in professional and in your personal life. So people tend to like, in your case, at what stage of your life you are in right now, तो लोग लर्निंग के पीछे तो भागते ही रहते हैं कि Hmm, लर्निंग तो करनी होती है, एंड दैट्स द राइट वे टू इवॉल्व आल्सो. hmm, बट evolve evolving also needs eliminating, because when you evolve, you have to unlearn also so many things in your life. correct. So, like, what are some of those things that you have unlearned recently? So, in fact, if you ask me, there is this articulation of a behavior that my current organization follows, and I find it really, really good. And I've started using it in on my discussions as well. I call that they use this term called intellectual humility. Yeah, Okay. this is specifically about uh, you know knowing all the time that regardless of your experience, expertise, or education, there will be always significantly much more knowledge out there than you can have in your heart or your brain. Hmm. So, therefore, being humble about it, it doesn't matter if you are a Nobel Prize winner or a doctorate. The fact is that you only know an iota of knowledge, and therefore, there is significantly more out there to possess. Right. And therefore, from the time when I realized the importance of it and when I started seeing it in real world, honestly, I realized two things, Utsav. Hmm. First, that like Darwin said, everything evolves. Your understanding also evolves. So therefore, you don't need to honestly, you don't unlearn as much. You evolve much more. You dimensionalize things. You start understanding the whys and hows of so many things that you believed were true, like a physics principle. But then you start understanding dimensions of it. Right. Yeah. Second, obviously, right thing also to do is when you start discovering those dimensions, there are things there you will also say that, okay, this is something that I used to think, this is something that I used to believe in, and it is time to let that go. Huh. One of the key things I will tell you, and this is my realization in the last, maybe 1.5 years or so, we all talk about our managerial styles. Yeah. This is how I manage people. This is how I work with people. This is my managerial style. I now believe that that's a fallacy. You can't have a managerial style. Okay. Yeah. The purpose of manager is to manage people that work with him or her. And when you are managing people, then your managerial style is to customize to people whom you are managing. You can't have one managerial style. Therefore, having a managerial style is honestly arrogant. Yeah. Your job as a manager is to get the best possible output from the people who are working with you and optimizing for their impact also. Right. Yeah. And hence, I don't use the term managerial style anymore. Right. Right. Mm. So, like, you have to adapt according to the situation, according to the people. According to people. So, there are people in your team who might be thriving in entrepreneurial situations. You give them ambiguity, they will go ahead and conquer it, and then they'll come back and tell you that this is what I've done. And then there'll be people who are very comfortable following processes, and whenever an ambiguous situation comes, they would want to consult you. Yeah. There are people who you possibly don't need to follow up with
more than once a week. There are people whom you possibly need to catch up every day. And hence, you can't have a managerial style. This term called managerial style, I think, is a fallacy. Right, right. So, like you are working in one of the, good organizations of India, PD Light. So, there is a corporate structure, right? And ये मेरा assumption है उसके लिए कि एक set of rules principles के साथ आपको वो एक follow करने को भी बोलता है, या तो फिर आपको इस तरीके से एक ब्रैकेट में लोग काम करते हैं वहां पे कि ये मेरा दायरा है, उसमें मुझे काम करना है उसकी वजह से. So what you're talking about, not having managerial style, तो अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो uh, how can you make this work of not having a particular kind of managerial style in a corporate structure जहाँ Okay. पे you require set of principles और rules सब कुछ set है वहाँ पे. So, जैसे when you talk about corporate Utsav, you will find that corporates would have some processes designed to help you do your job better. Right. अब वो processes कैसे होंगे that they might ask you to do some meetings on a monthly basis. एक अप्रेजल स्ट्रक्चर होगा कि आप अप्रेजल करेंगे अपने हाँ. टीममेट को साल के दौरान एक या दो बार मिलेंगे उनको फीडबैक देंगे वगैरह वगैरह. सो दे विल हैव ब्रॉड प्रिंसिपल्स ब्रॉड प्रोसेसेस टू help you, हाँ. but nowhere will you find that any of those would be so prescriptive कि आप उसमें बंध जाएं और आप उसके अलावा कुछ कर ना पाए. Yeah, then there is significantly more initiatives, work, engagement that you can drive with your teammates beyond the prescribed processes and enablers. Right. And that is why आप देखेंगे कि even in corporates, people as managers succeed at different levels. Some people succeed more than others. Now processes सबके लिए same है, हाँ. organization सबके लिए same है, enablers सबके लिए same है, right? There must be something which differentiates one from the other, and that is that element which I have come to realize that one has to put to work. राइट. राइट. एंड जो चीज आपने वो बोली थी कि अनलर्निंग नहीं होती बट आर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स थिंग्स चेंजेस. Right. So it just reminded me of the scene from the series that I have recently watched. Have you watched Rocket Boys? Rocket? No, I have heard about it. I haven't seen it. हाँ, बहुत अच्छी सीरीज है. मतलब एज एन इंडियन वो आपको देखनी चाहिए. Hmm. एक उसमें क्या बताया कि एक सीन के पहले विक्रम साराभाई एंड होमी बाबा की एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है जहां पे विक्रम साराभाई बोल देते हैं कि यू आर जस्ट आफ्टर योर गोल्स एंड यू ओनली थिंक अबाउट यू, होमी बाबा Hmm. को डायरेक्टली. Hmm. एंड फिर वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं एंड देन ही गोज टू JRD टाटा टू पिच ऑफ हिज ओन फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन. Okay. और वो मीटिंग के बाद उन्हें ये चीज रियलाइज होती है दैट आई नीड टू पुट माई कंट्री फर्स्ट, और उसके बेनिफिट में क्या हो सकता है मैं वो कर दूं. एंड दैट्स वेयर हिज परसेप्शन चेंज, हिज अंडरस्टैंडिंग चेंज ऑफ व्हाट ही वांट्स टू डू. और उसके बाद फिर एक अलग सा ही फिर आपको होमी बाबा दिखते हो वो सीरीज में भी. Hmm. सो आई Hmm. थिंक या Hmm. दिस इज ट्रू. Lot of them actually. अगर आप पुराने एग्जाम्पल देखेंगे उत्सव, हाँ. people like even Einstein. Yeah, Einstein has had multiple theories even after his theory of relativity, जिसको उन्होंने in a period of 12 years 3 बार रिवाइज किया. His own theory. Now there are various people who came back and said that Einstein was wrong, etc., etc. But he revised his own theory thrice. Yeah. So, people at all level, you look at all the most successful and most intelligent people, you will find them indulging in this quest for excellence and thereby constantly evolving their own ideas and not getting stuck anywhere. राइट. ट्विटर भी बहुत बातें कर रहा है आजकल और बहुत सारी चीजें बात हो रही है. द थिंग अबाउट AI रिप्लेसिंग जॉब्स. और और AI में आया भी था कि बहुत सारी ऐसी जो एक इमेज वायरल हुई थी, आई डोंट नो इफ इट वाज ट्रू और नॉट, बट 20 कुछ जॉब्स
वो रिप्लेस कर देगा एआई इजीली इन नेक्स्ट 5-10 years। उसमें कई सारी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग रिलेटेड जॉब भी थी, जैसे कॉपी राइटिंग थी और 2-3 ऐसा था। सो लाइक व्हाट डू यू थिंक एआई एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा? एंड हाँ, एक तो ये क्वेश्चन है। एंड सेकेंड थिंग अबाउट दिस थिंग कि रिप्लेस लोगों को कर देगा। सो डू यू थिंक इट विल रिप्लेस पीपल? सी आई थिंक इसमें ना आई एम इन्फ्लुएंस, आप देखेंगे जब जब मैं कोई बात करता हूँ ना, आई ऑलवेज रेफर टू व्हाट आई सॉ हाँ। अदर्स। तो मेरा सारा जो ज्ञान है वो सेकेंडरी है। मेरा भी। I've learned from people. So I was listening to this podcast by Naval Ravikant, and one of his core hypotheses that I think made an impression on me and that I agree with is that he says that human beings are meant to do creative jobs. Everything else will be overtaken by machines in a longish period of time, Right. and that has been happening from the time human beings invented wheel. Hmm. Slowly but steadily, on all non-value adding jobs are outsourced to machines. That there is nothing new about this. Yeah, we've just got a new topic and now we have a social media platform to talk about it. बट आप सोचिए कि ये तो एआई आया है, जिस टाइम कंप्यूटर्स आए थे उस टाइम क्या हल्ला मचता अगर हमारे पास ट्विटर होता तो। Hmm. Yeah, computers possibly was a significantly bigger disruption as compared to AI, if you ask me. Yeah. So therefore, I think this has been happening over a period of time, longish period of time, and therefore humanity has been pushed to find more value adding jobs. Right. I think that's the right direction, number one. Yeah, therefore that is where we should push ourselves, very simplistically said. Number two, मेरे को ऐसा भी लगता है कि ऑन ऑल नॉन वैल्यू एडिंग, जैसे आपने बोला कॉपी राइटिंग, ना कॉपी राइटिंग इज नॉट नॉन वैल्यू एडिंग। या एंड कॉपी राइटिंग टू अ सर्टन एक्सटेंट, AI might help copywriters कि एक बेसिक कॉपी लिख ली, बट द कैप्चरिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस, capturing of the essence, understanding the cultural nuances is something that a copywriter does very well. या आई हार्डली थिंक दैट कल को एआई को आप बोलोगे एशियन पेंट्स के लिए ऐड लिख दो और वो लिख देगा कि हर घर कुछ कहता है के अंदर इसमें कौन रहता है, राइट? तो वो एक जो आपकी नुआंसिंग है राइटिंग की वो नहीं आएगी। हाँ। बट हाँ, आप एक बेसिक अपने एक आर्टिकल लिखना है या एक पीआर का ब्रीफ लिखना, पीआर का रिलीज लिखना है, वो लिख देगा। विच आई थिंक देयर फॉर वी शुड slowly but steadily realize कि a lot of these things are non-value adding, and that is how they are treated today also. Yeah. Right. So that's my first belief. दूसरा मुझे लगता है कि like any other industry, AI will be used in marketing and advertising to try and automate almost everything which possibly is repeatable and therefore can be reviewed and improved by human intervention. तो वो उसका एप्लीकेशन आएगा, right? A lot of decision making which requires us to go through layers of data and then compiling data at one place, then comprehending data, then mulling over it and thinking and then making higher order decisions. At least compilation of data and some amount of visualization should get done via AI, and our job should only be about mulling over it and taking higher order decisions. Right. So I think some of those things which are possible are things that AI should overtake for sure. Yeah, but over a period of time, we should push ourselves to do value-added jobs. The only tricky part here, Utsav, which I don't know who I was discussing this with, is that whenever a technology advances, people responsible for technology advancement should also be made to realize their responsibility towards societal advancement. If you are replacing a certain number of people who are doing non-value adding jobs there is also a responsibility to upskill them.
Yeah, and that balance somewhere some industry as well as government has to find. Each business needs to realize that they have a responsibility towards society also. Hmm. Displacing people and leaving them helpless is going to result into some kind of societal consequences. And that equitable growth, that equitable progress is responsibility of the society. Hmm. Yeah, that I think we need to ponder over more. अगर if you for example there are audit agencies जहाँ लोग बैठ के सिर्फ बिल चेक करते हैं, even in advertising वगैरह वगैरह. Now a lot of that bill checking hopefully can happen via AI. Honestly, beyond a point there's nothing much there. Now all the people who sit and do that need to be retrained. There is a cost and effort required there. Who is going to do that? Yeah, who is going to pay for it? Yeah, Hmm. so now that has to be evaluated, that जो भी जहाँ पे भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी एआई बेस्ड एप्लीकेशंस को करने में, somehow the AI based application I think should include the cost of retraining in its cost also. Hmm. You can't have it very very cheap and thereby mass adoption and thereby a certain number of people completely not getting reskilled at all. दिस इज कॉल्ड इक्विटेबल प्रोग्रेस. मेरे को लगता है वो एक चीज है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे. But I have no problem with AI taking over all non-value adding jobs and pushing humanity towards more creative, more value adding endeavors. राइट. ट्रू. मुझे जो आपने ये चीज बोली इक्विटेबल वाली, आई थिंक दैट्स अ फेयर पॉइंट कि अगर आप रिप्लेस कर रहे हो कोई चीज को तो आप उनको अपस्किल भी करो, बिकॉज अदरवाइज कैपिटलिज्म इज ओके, बट उसका फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी बहुत ज्यादा नहीं चलना चलना चाहिए. करेक्ट. राइट. उसका एंड भुगतान भी हम ही करते हैं ना फिर. हाँ हाँ, फिर लोगों को ही करना पड़ता है. करेक्ट. ट्रू. ट्रू. और ये चीज तो मैं भी आपके साथ अग्री करता हूँ कि नॉन वैल्यू एडिंग जॉब के ऊपर जो लोग टाइम अपना करते हैं, मुझे अभी भी कोई कोई जॉब्स तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आती है कि जो है इंडिया में, अगर वो निकल जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे चले जाते हैं. लाइक आई कैन नेवर अंडरस्टैंड द जॉब ऑफ लिफ्ट मैन. व्हाट इज हम्म. द पॉइंट ऑफ अ लिफ्ट मैन? देयर इज नो पॉइंट हम्म. ऑफ लिफ्ट मैन, बट होता है इंडिया में ये सब चीजें कि बहुत सारे लोगों का घर चलता है, तो आई थिंक गवर्नमेंट करेक्ट. उसमें इंटरफियर नहीं करती. राइट. सो वो ट्रू. है ना कि देखो आपके पास जो चीज ज्यादा होती है ना, यू थ्रो दैट एट द प्रॉब्लम्स. हम्म. सो इफ यू गो टू जर्मनी एंड यू हैव अ प्रॉब्लम, दे विल थ्रो एन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एट इट. हमारे पास लोग ज्यादा हैं, तो जब कोई प्रॉब्लम हाँ. होती है ऐसा करो 4 लोग और लगा दो. हम्म. Right, if you go to airports which is the primary image of advancement of a country, वहां पे जितने लोग employed हैं, you can't understand what are so many people doing checking boarding passes. Right, now if you look at this new Digi Yatra जो install हुआ है at 3-4 airports, I don't know whether you've experienced it हम्म. in Delhi, Varanasi, Bangalore and mm, and couple of more airports जहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल किया है. जो चेक इन इजीली हो जाता है, अपने आप से ही हो जाता है. राइट. बिल्कुल ही, या हाँ तो हाँ आप हाँ, आई एक्सपीरियंस दैट. हाँ. है ना, तो वो आप बाहर से ही जाइए, आपका कोई आई कार्ड भी नहीं देखेगा. हम्म. यू डायरेक्टली गो टू योर सिक्योरिटी चेक और वहां हाँ. पे अपना सामान रखिए. सो आई थिंक दोज आर एडवांसमेंट्स दैट हैव नाउ स्टार्टेड कमिंग when we have realized कि throwing people at everything is not the solution. नॉट द सोल्यूशन. हाँ. So all of these will push people up. हम्म. Now the only thing that we have to do is do it responsibly. राइट. ट्रू. व्हाई Pidilite इज सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन? और जैसे भी हम बात करते हैं फेविक्विक, फेविकॉल, देयर इज काइंड ऑफ अ मोनोपोली इन इन दोस प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर मैं कुछ भी लेने जाऊंगा तो मैं लाइक इट्स इन माय सबकॉन्शियस माइंड की फेविक्विक ही बोलना है. अगर कुछ भी ऐसे अधेसिव ऐसा कुछ भी करना है, लाइक वाटर अधेसिव कुछ भी के लिए फेविक्विक, फेविकॉल, उस पे ही आप ध्यान दो. सो लाइक हाउ दे हैव क्रिएटेड दिस मोनोपोली, और क्यों कोई प्रोडक्ट एंटर नहीं कर पाए इस मार्केट में जितने स्केल तक पीडीलाइट ने स्केल किया ये दोनों ब्रांड को? Interesting one actually, and a lot of people are genuinely interested in knowing this. Yeah, हाँ. दो तीन टुकड़े हैं इसके. पहला है that you will find that Pidilite makes choices of entering products or categories where usually there is no competition
People aren't working in those spaces. More importantly, those are usually commodity spaces before Pidilite gets into it. Hmm. That's the first thing. Number two, because Pidilite focuses on quality significantly, which is where commodities suffer, Pidilite makes sure that it sets a certain quality standard and then it meets that quality standards consistently. So, what is branding? Branding is all about promising a certain bundle of promises to you as a consumer. Right. आपकी डिजायर ये होगी कि अगर फेविक्विक ने बोला चुटकी में चिपकाए तो हर बार जब फेविक्विक खोलूं तो वो चुटकी में चिपकाना चाहिए, Right. रिगार्डलेस ऑफ वो जनवरी में बना, जुलाई में बना, या 2014 में बना, या 2024 में बना, राइट? So the branding is a set of promises, and Pidilite fulfills that promises day in and day out. The third thing that Pidilite does well is that it invests in branding upfront. When people did not know about wood adhesive, Pidilite had already started marketing Fevicol, advertising Fevicol. Then, sometime later, BKP, the founder, realized that uh, if you want people to develop significant trust on Fevicol, Fevicol needs to move beyond wood adhesive, and therefore they came up with those small craft glue packs, Fevicol MR जिसको बोलते हैं, and those packs are also ubiquitous, सबके घर में मिल जाएगा. हाँ. तो बच्चे होने से ही आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है फेविकॉल के साथ कि फेविकॉल कुछ भी जोड़ सकता है, एंड देयरफॉर जब आप बड़े होते हैं तो आपको हैरानी नहीं होती कि यार अच्छा फेविकॉल वुड जोड़ सकता है, हाँ जोड़ ही सकता होगा, बचपन से जोड़ते ही आए हैं. Hmm. So therefore, the long-term thinking of branding plus consistent product quality plus very choiceful spaces to play into are three very broad things that make those brands what they are today. And Right. of course, there is a combination of work that Pidilite does with intermediaries like carpenters, contractors, etc., which is below the radar. So our MD, Mr. Bharat Puri, has this thing. He says that Pidilite is a duck. It looks very calm and serene on the surface, but it is furiously paddling under the water, which you don't see. Hmm. So our furious paddling is with these contractors and the work that we do below the radar of innovation, making these choices, etc., etc. So it's a combination of all of these why we have received the sort of love that we have received from consumers, Hmm. and we are where we are. Right. Right. There are a lot of other form of marketing now कि influencer marketing आ गया है, performance marketing आ गया, ये social media marketing आ गया, फिर XYZ जो marketing जो चल रहा था वो कि ऐप और ads बना रहे वो सब. But what do you think? At the end of the day, it's marketing. पीछे तो marketing ही लगता है. So like, what are some of those fundamentals जिनको मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है, जिनको जानना चाहिए कि ये फंडामेंटल्स आप क्लियर करो अबाउट मार्केटिंग, एंड इट विल बी मोर इजियर टू देन गो इनटू एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग. सोशल मीडिया भी कर लो, सब कुछ कर लो, ये प्रिंसिपल तो नहीं चेंज होने वाले. I must first thank you for asking that question, Utsav. It's an important one. Like you said, बहुत लोग इसे जानना चाहेंगे. मुझे लगता है जितने लोग इसे जानना चाहेंगे उससे कहीं ज्यादा लोगों को ये जानना चाहिए. राइट. या. Yeah. So therefore, thank you for that. Now, आपकी बात सही है बिल्कुल. There are lots of names ahead of marketing now, and I find it a bit funny uh, because we have now started attaching channel names ahead of marketing. So we call it digital marketing, performance marketing, etc. While the fact is that in the olden days also people never used to call themselves as radio marketer, TV marketer, cinema marketer. They were marketers. Yeah. But well, you are right that marketing fundamentals don't change regardless of wherever you are doing your marketing. And therefore, the core fundamentals that you spoke about are around what if I have to succinctly put it, are around branding and marketing. Yeah. If let's just talk about only two things. Branding, as I said, is a set of promises that you make to your consumers. So therefore, even before
you start communicating to the consumer. There are some sort of promises, some set of uh, proposition that you think about the product, which you will want to communicate to consumers at some point in time. जब आपके दिमाग में सबसे पहले बिजनेस का आइडिया आता है ना, तभी से आपकी प्रोपोजिशन बननी शुरू हो जाती है कि ये आइडिया क्यों सक्सीड करेगा, लोगों को इसकी जरूरत क्यों है. दैट्स योर अर्लीस्ट आर्टिकुलेशन ऑफ प्रोपोजिशन. हाँ. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट किसी भी आप मीडिया चैनल में जाएंगे, उसमें जाने से पहले आपके पास एक बहुत सॉलिड प्रोपोजिशन होनी जरूरी है. उस प्रोपोजिशन को वर्कआउट करने के बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, एंड वी विल नॉट गेट इनटू फ्रेमवर्क्स राइट नाउ. बट उस प्रोपोजिशन के दो ही कस्टोडियन हैं, एक आप और एक आपका कस्टमर. और कस्टमर बड़ा कस्टोडियन है, क्योंकि फाइनली उसको समझ में आनी चाहिए, उसको दिखाई देनी चाहिए. और आप कस्टोडियन इसलिए क्योंकि आपको फुलफिल करनी है. So therefore, first part is to make sure that you know your consumer very well, and then you are able to articulate your proposition such that your product is able to fulfill it and your consumer is able to understand it. So Right. that's the first responsibility. Does not matter आप कर रहे हैं या रेडियो पे मार्केटिंग कर रहे हैं, but you need to be able to have a proposition that works for your consumer and has been tested with them. The second fundamental, I would say, Utsav, is marketing. Now you are, पहला हमने ब्रांडिंग बोला, तो ब्रांडिंग में आपने अपने प्रोमिसेस वर्कआउट कर लिए. यू आर एट अ कंफर्टेबल प्लेस नाउ. हाँ. एंड उसको जो बोलते हैं शुरू में स्टार्टअप लैंग्वेज में बोलते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. हाँ. वो आपने बना लिया, उसमें वो प्रोपोजिशन डिलीवर हो रही है. फिर आपने थोड़ा बहुत उसको टेस्ट आउट कर लिया, आपको कुछ कंज्यूमर्स मिल गए, गॉट अ पॉजिटिव रिव्यू वगैरह वगैरह. नाउ यू वांट टू स्केल अप. हाँ. अब जब आप स्केल अप करेंगे तो नंबर वन, आपके कस्टमर आपके इन्फ्लुएंसर बनेंगे, अर्ली कस्टमर. But you want to go much beyond them. So therefore, you would have to employ what we call as marketing, which means that now you want your proposition to be carried to the consumer in the most effective way possible. हाँ. Yeah. Now वहां पे आती है आपकी सेकेंड साइंस कि कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है. फ्रॉम द टाइम द कंज्यूमर feels the need to buy your category to the time you see consumer buying your product, what are the various steps in the middle, and therefore which of these steps are you going to influence such that the final outcome is in your favor. When you start putting that thought process, that is when you start understanding कि मेरे को marketing में करना क्या है. Right? Let me elucidate Right. this second point with a little bit of an example. हाँ, मैं यही हाँ, पूछने वाला था. तो जैसे मान लीजिए दो एग्जाम्पल दूंगा मैं, वन फ्रॉम अ डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ. वन फ्रॉम अ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. सोचिए दैट यू आर मार्केटिंग पेप्सी. ठीक है. नाउ पेप्सी की जो नीड है, सबसे पहले आपकी नीड होती है कुछ पीने की, एंड विच इमर्जेस फ्रॉम सम ऑफ द एसोसिएशंस दैट कोल्ड ड्रिंक कैटेगरी हैज बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. समर्स, गर्मी Right. लग रही है, यू आर आउट एंड अबाउट, or you're having some food which is oily and your throat is parchy, or you're standing with your friends having some snacks etc etc and you want to drink something along with it. ऐसे तीन चार सिनेरियो होंगे, बट आपको अर्जेंटली एक नीड फील होगी. जब वो नीड फील होगी, व्हाट विल यू डू? यू विल लुक अराउंड एंड यू विल ट्राई एंड सी कि यार मैं किस शॉप पे जा सकता हूँ, वहां पे जाके पूछता हूँ. और जब आप शॉप पे गए, आप क्या मांगेंगे इस पे भी फर्क पड़ जाता है. If you ask for Pepsi, the guy gives you Pepsi, you're done. If you ask for a cold drink, there is a chance that the guy might offer you a Coke and you bought it, right? हाँ. अगर आप सही में ब्रांड लॉयल हैं, आप शायद दूसरी दुकान पे जाएंगे अगर वो आपको कोक देगा तो, बट काफी लोग ले लेते हैं, राइट? ले लेते हैं. हाँ. नाउ इफ आई वाज अ पेप्सी मैनेजर और यू आर अ पेप्सी मैनेजर, आप दो तीन काम करेंगे. नंबर वन, यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंटली इनटू सम यू नो नीड क्रिएटिंग एसोसिएशंस. जैसे बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कोक एंड समोसा, कोक एंड डोसा, और पेप्सी एंड समोसा, पेप्सी एंड डोसा, ऐसे करके कॉम्बिनेशन उन्होंने बना रखे होते हैं, सो दैट इमीडिएटली जैसे आप डोसा सोचे, आपके दिमाग में सबसे पहले पेप्सी आए. दैट इज एट द स्टेज वन. स्टेज टू, आप दुकान पे जा रहे हैं, आप क्या मांगेंगे
नाउ दे कांट लीव इट टू चांस. इफ दे कांट लीव इट टू चांस तो क्या करेंगे वो? You will see that Pepsi as well as Coke, but more Pepsi, they will put their boards all across the shops. और उस बोर्ड में स्पेसिफिकली किसी की कोल्ड ड्रिंक पीते हुए फोटो दिखाई जाती है. उसमें ऐसा हाँ हर घूंट में स्वैग है वगैरह ब्रांडिंग ब्रांडिंग नहीं होती, बिकॉज दे नो दैट्स द थर्स्ट मोमेंट. आप जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक देखेंगे मुंह में जाते हुए आपका मन करेगा. सो देयर फॉर देर आर, बाय पुटिंग अप दैट बोर्ड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ इंप्रेशन इन योर हेड, ताकि आप जाके पेप्सी ही मांगे. राइट. एंड देन थर्ड पॉइंट ऑब्वियसली इज अवेलेबिलिटी. सो देयरफॉर आप देखेंगे समर्स में पेप्सी ऑलमोस्ट डज ट्वाइस अ डे सर्विसिंग टू दीज आउटलेट्स ऑल्सो, जहाँ पे हाई थ्रूपुट हाई फुटफॉल होता है नियर कॉलेजेस वगैरह वगैरह. दो दो बार बीच में गाड़ी आती हाँ है और वो देके जाती है, जो कि अदरवाइज वंस अ वीक होता है इन रेगुलर डेज. So therefore, now all of these are pieces which they have worked out after lot of iterations, but after understanding कि customer को क्या चाहिए. अगर वो सिर्फ हाँ एडवर्टाइजिंग पे रिलायंट रहते और ये सब बीच में नहीं करते तो कस्टमर उनके डिसीजन, उनका फेवर में डिसीजन नहीं लेने वाला था. ठीक है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. नाउ आई विल ऑल्सो द हाँ सेकेंड एग्जाम्पल दैट आई वाज सेइंग, एंड दिस इज समथिंग विच इज कॉपीड, which I read on Twitter. This was put up by Arindam Paul, who works with ओके Atomberg fans. तो उसका एक बहुत अच्छा ओके एग्जाम्पल उसने लिखा था कि यूजुअली व्हेन यू वर्क ऑन डिजिटल, the reason performance marketing and digital marketing is becoming popular these days, that measurability and attribution becomes easy. कि कितना धंधा आ रहा है वो समझ में आता है, और कहाँ से आ रहा है वो समझ में आता है. इस कारण से हर कोई डिजिटल के पीछे भागता है. तो उसने एक बहुत अच्छा हाँ एग्जाम्पल दिया इसमें, मजेदार एग्जाम्पल. ही सेड कि आपने एक नई आइसक्रीम की शॉप खोली, मान लीजिए मुंबई में. ओके. इन सपोज अ प्लेस कॉल्ड अंधेरी. नाउ आपने दो हाँ सेल्समैन रखे. उन दोनों को आपने पैम्फलेट पकड़ाए. दोनों पैम्फलेट पे अलग अलग क्यूआर कोड थे, और आपने उन दोनों को बोला चलो जाके मार्केटिंग करो. तुम्हारे क्यूआर कोड, जिसके ज़्यादा क्यूआर कोड स्कैन आएंगे, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है. ठीक है. तो आपने मेजरेबिलिटी और एट्रीब्यूशन दोनों पे काबू कर लिया. ना एक हाँ सेल्समैन था, वो बहुत सीधा साधा था, और अच्छे बच्चों की तरह वो गया. उसने स्कूल स्कूल घूमा, स्कूल के बाहर खड़ा हुआ, बच्चों को पैम्फलेट दिए, नई शॉप के बारे में बताया वगैरह वगैरह. दूसरा जो था वो बहुत स्मार्ट था. उसने क्या किया, उसने बोला यार इधर उधर घूमूंगा बहुत मेहनत होगी. फाइनली आई एम नॉट गोइंग टू गेट मेजर्ड ऑन हाउ मेनी कस्टमर आई एम ब्रिंगिंग, आई एम गोइंग टू गेट मेजर्ड ऑन कितने कस्टमर मेरा क्यूआर कोड लेके जा रहे हैं. वो आइसक्रीम हाँ शॉप के बाहर खड़ा हो गया. जितने जितने कंज्यूमर अंदर जाते थे सबको बोलता था ये क्यूआर कोड ले लो, 15% डिस्काउंट मिलेगा. नाउ एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स उन्होंने डेटा देखा, तो उन्होंने बोला अरे वाह, सेल्समैन 2 के तो सारे क्यूआर कोड यहाँ पे आ रहे हैं. तो उन्होंने सेल्समैन 1 को फायर कर दिया, और सेल्समैन 2 जैसे दो और रिक्रूट कर लिए. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि सेल्समैन 2 is only discounting your sale that you were anyways going to get, and salesman 1 हाँ was actually doing top of the funnel work कि वो आपके लिए अवेयरनेस बढ़ा रहा था. So therefore on digital also you have to be careful. Everything which can be measured and can be attributed might not be incremental. ट्रू या आप अपनी ही सेल के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, जो कि सेल एनीवेज आपके पास आने वाली थी. आने वाली थी हाँ तो देयरफॉर ही मेक्स अ केस एंड विच इज द राइट वन कि भाई आप अपने कस्टमर को समझिए, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझिए, एंड देयरफॉर डू सम वर्क इन क्रिएटिंग मेंटल इमेजरी ऑल्सो, कि ताकि वो बंदा सर्च करना शुरू करे. सर्च करने के बाद की जर्नी तो आप डिजिटल पे कैच कर पा रहे हैं, उस पर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं हाँ बाय डूइंग सर्च इंजन मार्केटिंग एंड फनल मार्केटिंग. बट अगर आप टॉप ऑफ द फनल काम नहीं करेंगे, लोग सर्च ही नहीं करेंगे, तो देन यू विल ओनली सब्सिडाइज योर ओन सेल. सो बोथ ऑफ दीज एग्जाम्पल्स उत्सव आर अबाउट द फैक्ट दैट आपको ना आपकी मार्केटिंग में कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग जर्नी समझनी पड़ेगी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड हैव टू कीप मेकिंग डिसीजंस कि मेरा ब्रांड किस स्टेज पे कंज्यूमर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहता है. हाँ दैट बिकम्स क्रिटिकल. तो देयरफॉर टू योर क्वेश्चन, ब्रांडिंग को अच्छे से समझना और मार्केटिंग को अच्छे से समझना, दीज टू आर फंडामेंटल्स रिगार्डलेस ऑफ आप किसी भी फील्ड में है. वंस यू डू दैट देन यू विल बी एबल टू डू योर जॉब सिग्निफिकेंटली बेटर. राइट
मेरा एक क्वेश्चन है टू रिगार्डिंग नो योर कस्टमर, बट उसके पहले मुझे ये पूछना है कि जैसे अभी कोई भी इस चीज को एप्लीकेबल करना चाहता है इन या रियल लाइफ, जो अभी अभी आपने चीज बोली, या अभी वो शायद से अगर अपने कॉलेज में होंगे, या तो फिर दे आर जस्ट राइट आउट ऑफ द कॉलेज, जॉब ढूंढ रहे हैं, या तो फिर कोई भी अपना चालू करना चाहते हैं, हाउ हाउ कैन दे अप्लाई दिस लर्निंग्स ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इन रियल लाइफ, कि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनको मिले, वो इटरेशन करके। ठीक है। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं। आप कोई एक बिजनेस पकड़िए, कोई भी एक बिजनेस बोलिए, लेट्स वर्क विद दैट। ओके, कर देते हैं कि कैमरा का बिजनेस। कैमरा। हाँ। तो ओके, सो नाउ यू आर अ कैमरा शॉप। यू डोंट इवन हैव योर ओन ब्रांड ऑफ कैमरा, मान लीजिए। हाँ। यू आर अ कैमरा शॉप। ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में अपनी कैमरा शॉप खोली। ना आपको ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सोचनी है, हाँ। राइट। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछना है कि अगेंस्ट अदर कैमरा शॉप्स दैट आर अवेलेबल, व्हाट इज योर डिफरेंस, व्हाई शुड पीपल कम टू यू वर्सेस अदर्स। जब आप सोचना शुरू करेंगे तो यू विल कम अप विद सम ऑफ द ऑब्वियस ऑप्शंस, कि जैसे मेरे पास सभी ब्रांड्स के कैमरा मिलते हैं, मेरे पास सभी ब्रांड्स के कैमरा सस्ते मिलते हैं, या मेरे पास इक्विपमेंट्स बहुत सारे मिलते हैं, राइट। तो इस तरह करके कई सारे आपके पास अलग अलग तरह के आर्टिकुलेशन दिमाग में बनेंगे। हाँ। या sometimes you might also realize that you have a locational advantage, that you are situated in a particular part of the city where nobody else is there, right. राइट। So when you think through all of this, you might also, for example, one of the things that comes to my head is कि lot of the time जो लोग ये काम करते हैं ना, वो सारे दुकानदार होते हैं, हाँ। राइट। सो दे आर जस्ट स्टॉकिस्ट, उन्होंने कैमरा रखे हुए हैं, आप जाके मांगेंगे वो आपको दे देंगे। इफ यू फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट टेकिंग अ कंसल्टेटिव अप्रोच, कि बहुत सारे लोग आएंगे जिन्हें ऑनेस्टली नहीं पता उन्हें क्या स्पेसिफिक कैमरा चाहिए, उनको रिक्वायरमेंट है, तो देन इफ यू हैव somebody who can explain the camera and its suitability to requirement very well, you might find a good clientele, right. सो ये सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन हो सकते हैं। राइट। अब आपको नहीं पता कि इसमें से कौन सा चलेगा, राइट। हाँ। तो देयर फॉर यू नीड टू देन डिसाइड, जैसे मैंने बोला, दो ही कस्टोडियन होते हैं आपके ब्रांडिंग के, एक आप और एक आपके कस्टमर। आपका कस्टमर। तो जाइए कस्टमर से मिलिए। अब नाउ यू नीड टू डिसाइड कि आपका प्राइमरी कस्टमर कौन होने वाला है। हाँ। मान लीजिए आपका प्राइमरी कस्टमर है फोटोग्राफर्स, जिनके पास आज अपना इक्विपमेंट है पर वो अपग्रेड करेंगे, सो गो मीट देम। या मान लीजिए आपका कस्टमर होने वाला है इनिशिएटर्स, जिन्होंने आज फोटोग्राफी नहीं करी है, बहुत सारे लोग फोटोग्राफी पिकअप करते हैं, हाँ। राइट। उनसे जाके मिलिए और उनसे समझिए कि यार उनके लिए क्या सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। या यू माइट कम बैक विद एन अंडरस्टैंडिंग कि जो लोग शुरू करने वाले हैं ना, उनको कंसल्टेटिव अप्रोच बहुत चाहिए। जो लोग ऑलरेडी फोटोग्राफी करते हैं उनको मोटा मोटा आइडिया है, उनको एक्चुअली अवेलेबिलिटी एंड और रेट्स चाहिए, राइट। राइट। एंड देयरफॉर यू नीड टू डिसाइड कि यार मेरा प्राइमरी कस्टमर कौन सा है, हाँ। क्योंकि दोनों के हिसाब से आपकी रेंज भी अलग होगी, जिस तरह की रेंज आप रखेंगे। या वंस यू डिसाइड दैट, दैट बिकम्स योर ब्रांडिंग, नंबर वन। या देन once you decided that branding, it is important that you consistently deliver that promise। तो अगर आपने बोला मैं कंसल्टेटिव अप्रोच करूंगा, तो हर कस्टमर आएगा उसको कंसल्टेटिव अप्रोच मिलनी चाहिए, राइट। दैट विल ऑल्सो इनफैक्ट इन्फ्लुएंस योर स्टोर डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर ओपनिंग अ स्टोर जिसमें कंसल्टेशन है ना, मेरा रेगुलर स्टोर नहीं होगा जिसपे काउंटर है और काउंटर के पीछे मैं खड़ा हूँ और कस्टमर सामने खड़ा है। मैं थोड़ी सी जगह बनाऊंगा जहाँ पे स्टूल होएगा, जाके कस्टमर आके बैठेगा, मेरा रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो दोनों बात करेंगे, मैं उसको ब्रोशर्स दिखाऊंगा और उसको इन्फ्लुएंस करूंगा ताकि वो कहीं और बाहर ना जाए, राइट। ट्रू। राइट। सो माई स्टोर डिजाइन, द सॉर्ट ऑफ पीपल दैट आई टॉक अबाउट, सो व्हेन somebody comes and says कि मेरे को आप DSLR ये दे दीजिए, माई कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट से ये लीजिए सर इसका ये रेट है। वो क्या पूछेगा पहला क्वेश्चन, सर आपको सर। क्यों चाहिए, हाँ। आप क्या करने वाले हैं, कंसल्टेटिव अप्रोच। सो योर ब्रांडिंग जो भी आपने डिसाइड करी है ना, ईच एलिमेंट ऑफ योर स्टोर एंड योर people that you employ at the store have to live that branding through and through with every activity. So that becomes one. Second piece is marketing. Now आपने MVP हो गया, टेस्टिंग हो गई, थोड़े बहुत कस्टमर आ रहे हैं, आप बोला कि आपने यार हर रोज
फुटफॉल है एवरेज, हफ्ते में सिर्फ 14 लोग आ रहे हैं, हाँ मेरे को ये 14 का 140 करना है, 10 गुना करना है. हाँ नाउ व्हाट इज मार्केटिंग अबाउट? मार्केटिंग इज अबाउट कैरिंग योर ब्रांडिंग टू अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको आप मार्केटिंग करना चाहते हो. एंड अगेन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग जर्नी. तो आप बोलेंगे कि यार चलो मान लो ये जो फोटोग्राफी के जो इनिशिएटर्स हैं ना, उनकी डिसीजन मेकिंग जर्नी कैसे होती है, कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं वो लोग, राइट? सो यू विल से कि यार पहला इंप्रेशन उनको कब होता है, कब उनके दिमाग में आता है कि मुझे फोटोग्राफी करनी चाहिए. एंड जब उनके दिमाग में आता है उसके बाद वो क्या करते हैं, सबसे पहले कहाँ सर्च करते हैं, या सबसे पहले कहाँ जाते हैं, एंड हाउ विल दे रीच मी. इफ यू वर्क दैट आउट, हाउ विल यू वर्क दैट आउट? एक है कि आप हाइपोथेसाइज कर सकते हैं, दूसरा है आप किसी से जाके मिलिए दोबारा से. सो आपके ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर्स ना कंज्यूमर्स के पास हैं. हम्म तो यू डोंट नीड टू हाइपोथेसाइज मच, जाके पूछ लो. हम्म एंड दिस इज वेयर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कम्स इन, कि आप ये धंधा 20 साल से कर रहे हैं, डजेंट मैटर, आंसर कंज्यूमर के पास ही है. तो जाके पूछिए, ये मानिए कि आपको नहीं पता है, कंज्यूमर बता देगा आपको, कंज्यूमर को बताने में कोई हिचक नहीं है अगर हाँ उसको उसका फायदा मिल रहा है तो. या सो वंस यू रियलाइज दैट कि मान लो कि ज्यादातर लोग जब, आई एम जस्ट हाइपोथेसाइजिंग नाउ, हाँ 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 कि ज्यादातर लोग जब व्हेन दे गेट एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ नाइसली क्लिक्ड फोटोग्राफ्स ऑन फेसबुक और ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, दैट इज व्हेन दे समहाउ इमीडिएटली थिंक कि हाँ यार ये तो मेरे को ना इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ. फोटोग्राफर्स की पिक्स देख के आपको नहीं लगता कि आप कर सकते हो, हाँ दोस्त की पिक्स देख के लगता है आपको कि हाँ यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ. करेक्ट? तो देन जब आप दोस्त की पिक देखोगे तब आप देखोगे कि अरे यार ये तो बहुत सही है, उससे पूछोगे तू क्या यूज करता है, देन यू विल डू अ लिटिल बिट ऑफ सर्चिंग, राइट? सो नाउ इफ यू आर अ डिजिटल savvy बिजनेस ओनर, यू विल से कि यार जो एक इनिशिएटर है ना, वो एक डिफरेंट टाइप की सर्च करता है वर्सेस अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर. हाँ या तो वो कुछ टाइप के मॉडल सर्च करेगा जो कि कॉमनली अवेलेबल हैं, या वो ऐसा कुछ सर्च करेगा कि कैमरास टू स्टार्ट विद, कैमरास फॉर इनिशिएटर्स वगैरह वगैरह. एंड देयरफॉर मैं उस पे बिड करूंगा, नंबर वन. या नंबर टू, मेरे को ये लोग लाइकली कहाँ मिल सकते हैं, इफ आई हैव टू थिंक इवन आउट ऑफ द बॉक्स, कि ये लोग कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ होंगे ये लोग, हम्म राइट? सपोज आई से कि यार अ लॉट ऑफ द पीपल हु सीम टू बी इनिशिएटर्स हु आर कमिंग टू मी नाउ seem to be people who have just gotten into their first jobs, yeah, or just out of their college, मान लीजिए, हाँ right? तो if you realize that, then you will try and say कि यार can I, rather than those people coming to me all the way here, can I go to them? Yeah. So therefore suppose I say कि यार there are places, there are office compounds, बड़े बड़े कैंपसेस होते हैं जहाँ पे कि वहां से बहुत लोग आने के चांसेस हैं. एक काम करता हूँ, मैं वहाँ एक काउंटर सेटअप करता हूँ. या बहुत ज्यादा माल वाल रखने की जरूरत नहीं है. क्यों? मैं क्योंकि माल नहीं बेच रहा हूँ, मैं कंसल्टेशन बेच रहा हूँ. कंसल्टेशन बेच रहा हूँ तो मेरे को वहाँ कंसल्टेटिव लोग बिठाने हैं. माल होता है तो सामने वाला जब वॉक इन करता है वो थोड़ा इंटिमिडेट हो जाता है कि यार अब मेरे को बेचने की कोशिश करेंगे. मैंने बेचना ही नहीं है, मैं सिर्फ आपको कंसल्ट करूंगा, आपको खरीदना तो आप मेरी दुकान पे आ जाइएगा. हाँ तो दिस इज व्हाट इज टॉप ऑफ द फनल मार्केटिंग, कि आई एम क्रिएटिंग कंसिडरेशन अमंगस्ट सेट ऑफ पीपल हु आर लाइकली टू बाय माय प्रोडक्ट्स. या so this is how you can think about branding and marketing. A lot of this does not take significant amount of money spends, but what it takes is far more valuable time. राइट राइट आपके पास दिन में 24 ही घंटे हैं, हाँ किस चीज पे आप उसे स्पेंड करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट दिस टेक्स टाइम. फॉर एवरी स्टार्टअप आउट देयर हु इज पॉसिबली बी लिसनिंग टू योर पॉडकास्ट, it is the startup owners, the branding guys, the marketing guys who need to invest their own personal time into getting this right. दिस इज फंडामेंटल. आप कंज्यूमर को जो प्रॉमिस कर रहे हैं और उसको फुलफिल कर रहे हैं, उससे बड़ा आपके बिजनेस में और कुछ नहीं है. एवरीथिंग एल्स इज पेरिफेरी. राइट ट्रू सो ट्रू दिस इज हाउ डज दैट सेटिस्फाई योर? यस यस 100%. आपने क्या बहुत अच्छी तरीके से समझाया, मुझे ऐसे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है. मुझे एक सवाल और है फ्रॉम द हम्म. ब्रांडिंग पार्ट, हाँ कि जी. आपने बोला कि यू हैव टू नो योर कस्टमर्स रियली वेल. हाँ जी. अभी लोग अ, अपने कस्टमर्स के बारे में रिसर्च भी करते हैं, जानती भी चीज़ है, वो सब है, बट दे कांट डिसाइड ऑन कि ये मेरा राइट सेट ऑफ कस्टमर ग्रुप है कि नहीं है. दे हम्म. नो कि हाँ ये होगा, बट दे देन दे सी कि
सेल्स नहीं आ रही, या तो फिर जो जो भी ऑब्जेक्टिव था कस्टमर को समझ के कुछ भी मार्केटिंग करने का, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। सो इट अगेन कम बैक टू कि आपने अपने कस्टमर को नहीं समझा। सो लाइक व्हाट इज द राइट वे टू नो योर कस्टमर? वो उस स्टेज में आपका एमवीपी वाला स्टेज बहुत काम आता है. हाँ। And the word that I usually use, and this is slightly more, it came out of some of the processes that we have within Pidilite, but I think it applies everywhere. I am a fan of this principle called positive exception. ओके। ठीक है. अब क्या होता है लाइफ में ना, ऑल ऑफ अस आर फोकस्ड टू मच ऑन व्हाट इज गोइंग रॉन्ग. तो मान लीजिए आपका जो कस्टमर, आपका एक प्रोडक्ट है, आपने वो प्रोडक्ट मार्केट में डाला, एमवीपी बनाया, हाँ। और दैट प्रोडक्ट वाज सपोज टू अपील टू टीनेजर्स. राइट। ठीक है, आपने टीनेज मार्केट प्रोजेक्ट करी कि इतनी बड़ी टीनेज मार्केट है इंडिया की, बहुत सेल आएगी वगैरह वगैरह. आपकी सेल बहुत कम आई, एंड देयर फॉर अ लॉट ऑफ द रिव्यू विल हैपन ऑन कि क्यों नहीं लिया टीनेजर्स ने, क्यों नहीं क्लिक हो रहा है वगैरह वगैरह. मेरे को लगता है कि दैट इज अ लॉट ऑफ एफर्ट गोइंग डाउन द ड्रेन. क्योंकि जब आप किसी से पूछते हैं ना क्यों नहीं, तो क्या होता है सामने वाला आदमी डिफेंसिव हो जाता है, एंड देन यू गेट अ हाँ। लॉट ऑफ रीजंस विच माइट नॉट ऐड वैल्यू. My philosophy has been, and this is a tried and tested formula, to focus on positive exception. तुम ये इस पे फोकस करो किसने लिया. उसमें दोनों चीजें हैं. नंबर वन, किस टीनेजर ने लिया, उसने क्यों लिया, उसको हाँ। ऐसा क्या दिखा इसमें जो बाकियों को नहीं दिखा. वहां से आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा. राइट. अब जैसे हाँ। उत्सव एक टीनेजर है, मैं उत्सव के पास जाके पूछूं उत्सव आपने ये टी शर्ट क्यों ली, आप मुझे बताएंगे कि आपको ये अच्छा लगा. सिमिलरली उत्सव ऐसा टीनेजर है जिसने मेरी टी शर्ट नहीं ली, अगर मैं आपसे जाके पूछूं आपने ये क्यों नहीं ली, आप डिफेंसिव हो जाएंगे. राइट. हाँ। आपको मान लो वो टी शर्ट का डिजाइन बहुत बेकार लगा, शायद आप नहीं बोलेंगे. इंडिया में हाँ। हम थोड़े और पोलाइट होते हैं तो हम पोलाइट होता। सामने वाले को हाँ। नहीं देते फीडबैक. लेकिन आपने अगर ली है ना, फिर आप बढ़ चढ़ के अपने सब रीजन बता दोगे, भले ही दो एक्स्ट्रा और बता दोगे. बट हमें पॉजिटिव चीज बोलने में ना दिक्कत नहीं होती इंडिया में. राइट. हाँ। सो नंबर वन इज टू फोकस ऑन पॉजिटिव एक्सेप्शन, टॉक टू पीपल हु आर बाइंग रादर देन पीपल हु आर नॉट बाइंग. नॉट बाइंग। नंबर टू, मान लीजिए टीनेजर्स ने बहुत कम खरीदा, अडल्ट ने खरीदा, क्या दिक्कत है, अडल्ट से जाके मिलो, उन्होंने क्यों खरीदा. फॉर ऑल यू नो योर अजम्पशन अबाउट योर कस्टमर इटसेल्फ वाज रॉन्ग. राइट। राइट. In one of the this courses that I do, art of advertising, उसमें there was this girl, I forgot her name. She had a channel of religious content. ठीक है, उसने ये शुरू किया था कि यार जितनी भी इंडिया की ना एजिड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और व्हेन यू बिकम एजिड यू बिकम अ लिटिल बिट मोर रिलीजियस, तो मैं उनके लिए चैनल खड़ा कर रही हूँ. उसने लॉन्च कर दिया. थोड़े टाइम बाद उसको समझ में आया कि उसका जो 70% जो कंटेंट है वो तो टीनेजर्स कंज्यूम कर रहे हैं. नाउ देर आर टू वेज टू थिंक अबाउट इट. आई मस्ट गेट वरीड कि ओ हाँ। नो, मेरे कोर टीजी को तो मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा. और यू माइट से दिस सीम्स लाइक एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी. Not too many religious channels are aimed at teenagers, right? Why don't I go and talk to teenagers? What is appealing to them in this? Yeah, is it spirituality that they are after? Then I will relook at my content and I'll say, let me offer spirituality led content. Yeah, so therefore मेरा थोड़ा brand promise change हो जाएगा. So therefore your definition of your consumer also has to evolve over a period of time. Yeah, राइट। one of the things that I tell my students also is that there is a core consumer, there is a growth consumer. ओके। Core consumer is somebody who possibly consumes you, who comprises of 70% of your current consumption. आप हाँ। 100 रुपए का माल बेचते हैं, उसमें से 70 रुपए का माल कौन कंज्यूम कर रहा है, वो आपका कोर कंज्यूमर है. जरूरी नहीं है कि आप जीवन भर उसी को बेचते रहें. यू माइट रियलाइज कि यार मेरे को ना अब इस दिशा में आगे बढ़ना है. जो जिस हाँ। दिशा में आगे बढ़ना है ना, जहां से तुम्हें नेक्स्ट ग्रोथ आनी है बड़ी, वो ग्रोथ कंज्यूमर है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब मैं कैडबरी में था, मैं एक ब्रांड था जेम्स, वो मैनेज कर रहा था. जेम्स आप सबने खाया होगा छोटे होते, राइट. नाउ एज जेम्स ब्रांड मैनेजर, मेरे से पहले भी जो थे, मेरे से बाद भी जो आए, सबकी एक वरी होती थी कि हम ना, हमें सिर्फ बच्चे कंज्यूम करते हैं. और बच्चे जो होते हैं ना, उनकी कैटेगरी लॉयल्टी बहुत ही पुअर होती है, दे आर वेरी फिकल.
वो हाँ। घर से निकलेंगे जेम्स लेने, वहां शॉप में जाके देखेंगे कि बॉल के साथ टैटू मिल रहा है तो बॉल लेके आ जाएंगे। अब जेम्स का बॉल के साथ क्या कंपैरिजन है? कोई हम्म। कंपैरिजन नहीं है। बट दे हैव नो सेंस ऑफ कैटेगरी। सो हम्म। किड्स आर लेड बाय एक्साइटमेंट, एंड इट्स अ very very difficult thing for a kids brand manager to realize. You don't even know who you are competing with. You're competing with the next exciting thing in the market. It could be a laddu, it could be a ball, it could be a cracker, it could be a pencil, right? तो इट्स एन, तो किड्स ब्रांड मैनेजर की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो हाँ। खैर, सो जब ये रियलाइजेशन आ रहा था ना, सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी ट्राइड टू डू वाज टू से यार लेट मी यूनिवर्सलाइज द कंजम्पशन अ लिटिल बिट, थोड़े से बड़े लोगों को भी खिलाना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे अभी खाते हैं। सो हाँ। देयरफॉर माय कोर कंज्यूमर्स वर यंगर किड्स, 8 to 10 year old. My growth consumers were 10 to 14 year olds. That's how I defined the task for myself, and then I went about doing some stuff around it. So that's how you define कि यार मेरा core consumer कौन है, मेरा growth consumer कौन है। Yeah, and you will हाँ। see this in variety of businesses जो आज किसी और को बेचना है, but धीरे धीरे they want to appeal to somebody else. हाँ। हाँ। मैंने खुद अपने, जो मैं सिटी में रहता हूँ, बड़ोड़ा, Hmm. वहाँ पे नोटिस किया है कि लॉट ऑफ ब्रांड्स आर चेंजिंग देयर यू नो ब्रांड प्रपोजिशन टू यंगर पीपल, और ऐसा Hmm. करके कि उनको यंगर Hmm. पीपल को अट्रैक्ट करना है अपने, मतलब Hmm. लोकल बिजनेसेस ही है स्टिल। Hmm. दे आर ट्राइंग टू गेट यंगर जनरेशन फॉर देयर बिजनेस। Hmm. Hmm. इंटरेस्टिंग। अभी आप मुझे, जैसे अगर देखेंगे मैकडोनल्ड्स, हाँ। मैकडोनल्ड्स का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप जर्नी देखेंगे, एक बड़ी चीज जो उन्होंने शुरू करी कुछ टाइम पहले वाज मैककैफे। हाँ। ठीक है, अब मैककैफे क्यों शुरू किया? इट्स नॉट जस्ट अ रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी। सी मैकडोनल्ड्स वाज वेरी वेरी हाईली किड्स एंड यंगर टीजी ड्रिवन। नाउ दे सेड कि दोज आर द ओनली ओकेजन्स वी आर एबल टू satisfy. Can we become a little bit more family occasion driven? And therefore when an elder comes in, they find the cafe more alluring versus the McDonald's burger. So now they have possibly an offering for everybody. So if somebody was measuring average age of consumers at McDonald's, I'm sure it would have gone up. हाँ। ट्रू। ट्रू। अभी 2 दिन पहले जाके आया मैकडॉनल्ड्स, तो अभी तो मुझे क्लियरली पता चल गया। मैं भी मैक कैफे के लिए गया था, बिकॉज आई डोंट नो इफ मैनी पीपल विल अग्री विद दिस और नॉट, बट आई लाइक मैक कैफेज कॉफी a lot better than Starbucks ones, at least the Starbucks that is in my city, उससे मुझे ज्यादा पसंद है। Possibly. या सो मुझे अभी ये एक क्वेश्चन और पूछना है कि जैसे मैंने ना कई पॉडकास्ट सुने हुए, उसमें से ही मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग ब्रांड एंड बिल्डिंग अ ब्रांड। उसमें बहुत सारे अभी यंग जो नए स्टार्टअप फाउंडर्स है, जिनके अच्छे चल भी रहे स्टार्टअप्स, एंड इवन सम ऑफ द फोक्स हु आर वर्किंग विद मार्केटिंग, वो बोलते हैं कि अभी ब्रांड को अपना खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा करना पड़ेगा, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस, वो Mm-hmm. करके। Mm-hmm. तो अगर, क्योंकि वो अगर वो ऑडियंस वहां पे क्रिएट करेंगे, तो उनका जो वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आएगा, वो कम चला जाएगा। Correct. सो लाइक, बस मुझे यही जानना है कि इसके पीछे का वाई ये एक है कि ठीक है, चलो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट डाउन जाएगा, बट व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ बिल्डिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन एज अ ब्रांड? लाइक अभी बहुत सारे D2C ब्रांड्स आ रहे हैं, तो उन्होंने D2C ब्रांड के कॉन्टेक्स्ट में बोला था। सो Sure. लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, अदर बेनिफिट्स ऑफ इट? Interesting. So देखो, one, D2C has become a very very trendy term today. या। पर अगर आप देखेंगे ना, ट्रूली D2C बहुत ही कम ब्रांड्स हैं। हाँ। Most of the brands that call themselves D2C actually sell on Amazon and Flipkart. So you're not D2C, you're selling to a retailer who's selling it ahead, which is like selling to any shop, kirana store. तो वो B2C ही हुआ। हाँ, आप B2C ही हैं। सो D2C वो होते हैं कि लोग आपके पास आके खरीद रहे हैं। सो इन माय माइंड, मेक माई ट्रिप इज D2C, क्लियर ट्रिप इज D2C प्योरली। लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आके खरीद रहे हैं, राइट? यू आर सेलिंग देम पैकेजेस। हाँ। या सम ऑफ इट नाउ यू माइट बी देयर फॉर, किसी और की फ्लाइट बेच रहे हैं आप,
पर ग्राउंड पैकेजेस आपके अपने हैं. हाँ. यू आर एन एग्रीगेटर. या सो देर आर बिजनेसेस लाइक दिस, बट खैर दैट अपार्ट. अब जैसे हमने बोला उत्सव की, ब्रांडिंग जो होती है विच इज अबाउट द प्रॉमिस दैट यू मेक टू द कंज्यूमर, राइट. आइडियली यू वांट टू ओन एवरी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग जर्नी चैनल, ताकि आप वो प्रॉमिस ना अच्छे से फुलफिल कर पाए. हाँ. तो फॉर अ बिजनेस लाइक फॉर एग्जांपल बोट और शुगर और वट एवर योर रेफरेंस पॉइंट्स आर, ऑल ऑफ देम वुड वांट कि अगर मेरे 100% कस्टमर डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे आए तो मैं कितना अच्छा एक्सपीरियंस उनको दे पाऊंगा. और एक कस्टमर को अगर आप प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस दोनों दे पाते हैं तो अलग ही बात होती है. हाँ. अब एक एग्जाम्पल जो आप कई बार नोटिस करेंगे, अगर आप एक क्रोमा में कभी गए हैं ना, क्रोमा में हर तरह के स्पीकर बाहर डिस्प्ले में होते हैं. बोस का नहीं होता. बोस ने यूजुअली क्रोमा में एक अलग से रूम बनाया हुआ होता है. तो अगर आपको बोस का स्पीकर लेना है, क्रोमा का एम्प्लॉय आपको रूम में लेके जाएगा और फिर आपको बोस का स्पीकर वहां सुनाएगा. या फिर अगर आप जाके देखेंगे डायसन, हाँ. ना हर तरह के वैक्यूम क्लीनर पड़े होते हैं, डायसन का ना सेक्शन अलग होता है. और डायसन ने अपने सेक्शन में अलग अलग तरह की मिट्टी, गंदगी वगैरह सब रखी हुई होती है ताकि उसको डिस्प्ले कर सके. सो सम ऑफ दीज ब्रांड्स आर वेरी क्लियर कि मेरे को अपने कस्टमर को एक स्पेसिफिक टाइप का एक्सपीरियंस देना है. एंड देयर फॉर अगर कस्टमर मेरी दुकान पे मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा, जहाँ पे वो जा रहा है ना, मैं वहाँ पे वो एक्सपीरियंस रिक्रिएट करूंगा. हाँ. राइट. सो देयर फॉर योर अबिलिटी टू रिक्रिएट दैट एक्सपीरियंस बिकम्स बेटर अगर आप मेरी दुकान पे आएंगे तो. राइट. एंड देयर फॉर आप देखेंगे कितने भी दुकानें हों, कितने भी ब्रांड्स हों जो बेचते भले ही फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू हैं, लॉट ऑफ देम टेंड टू हैव देयर ओन कंपनी ओन स्टोर. कुछ एक आध दो चार होते हैं जहां पे दे आर एबल टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस, राइट. दैट आई थिंक शुड बी योर प्राइमरी रीजन why you should have your own distribution channel to whatever extent you can afford it. Yeah. Then राइट. obviously cost का एंगल तो है ही कि हाँ. आप जितना बीच में कमीशन देंगे उतना वो जाता जाएगा. बट आई थिंक कॉस्ट एंड एवरीथिंग कम्स लेटर. फर्स्ट थिंग इज दैट इफ यू आर एबल टू रिक्रिएट योर ब्रांड एक्सपीरियंस फॉर योर कंज्यूमर्स, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है. ट्रू. अभी मुझे एक ये क्वेश्चन पूछना है आपसे कि जैसे द काइंड ऑफ कंपनीज दैट यू हैव वर्कड विद, लाइक यू हैव वर्कड ऑन, आपने एक्लर्स का भी वो आपने एग्जांपल देके समझाया था वर्कशॉप के अंदर. या सो दीज आर सम ऑफ द बिग नेम्स, ये ब्रांड्स है कि जो या मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ और कल भी मैंने खाई होगी वो चॉकलेट, राइट. बट अभी जैसे स्टार्टअप में क्या होता है, स्टार्टअप दे कम विथ अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फंडिंग और सब कुछ. और अभी हम लोगों ने पॉडकास्ट का नाम चेंज करके वी आर नाउ डाइवर्सिफाइंग इनटू मेनी अदर टॉपिक्स एज वेल, कि मैं जिसके लिए क्यूरियस हूँ उनके बारे में करूंगा, पर उसके पहले वी वर ओनली फोकसिंग ऑन एंटरप्रेन्योर्स. करेक्ट. और मैंने 3-4 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को भी मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया हुआ था. जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, तो नाउ दिस इज अ वेरी ग्रेट पॉइंट. तो आईपीएल चल रहा है, तो अगर मुझे फैंटेसी खेलनी है, देयर इज अ टॉप ऑफ माय माइंड चीज है ड्रीम इलेवन एमपीएल. या दीज आर वेरी बिग नेम. अभी या एज अ बिजनेस फाउंडर अभी मैं जा रहा हूँ, जैसे कि मेरे एक पॉडकास्ट के ऊपर आए थे, ही वाज इनटू फैंटेसी गेमिंग. तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि ही इज इनटू टॉक विथ मार्केटिंग एजेंसी कि आप मुझे बोलो कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, हम्म तो उसके लिए मुझे क्या कॉस्ट लगेगा. सो हम्म दैट्स हाउ आई विल अप्रोच माय फंडिंग राउंड आल्सो. तो कई हम्म बार जो फंडिंग आती भी है, हम्म मोस्टली 60-70% वो लोग मार्केटिंग के लिए रखते हैं कि मार्केट करेक्ट करना है ब्रांड मुझे, ऐसा करेक्ट करके. करेक्ट. तो अगर मैं कोई ऐसा ब्रांड हूँ, हम फैंटेसी एग्जांपल लेके ही चलते हैं हम्म कि मेरे मार्केट में ड्रीम इलेवन है जो 85% या 80% मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, या एंड देयर अदर अदर पीपल ना. अब उसके अंदर मैं और घुस रहा हूँ. या फिर मैं एज अ एक छोटा सा स्टार्टअप में कैसे अपना एक ओन सेट ऑफ कस्टमर बेस क्रिएट करूँ अपने लिए, और किस तरीके से मैं अभी अपने आप को मार्केट करूँ. ठीक है. दो पार्ट्स हैं इसके सब. हाँ. और जो पहला पार्ट है वो लगभग काफी लोग मिस करते हैं, इसलिए हाँ. पहले उस पर बात करेंगे. हाँ. पहला पार्ट है कि देर इज नो प्रॉब्लम इन एंटरिंग अ क्राउडेड कैटेगरी, ओके. बट यू शुड डेफिनेटली नो योर राइट टू विन. ठीक है, पैसा आप खर्चा कर लेंगे, आपको इन्वेस्टर पैसा दे देगा, बट द फैक्ट इज दैट दैट विल लास्ट, दैट विल ब्रिंग पीपल ऑन टू यू.
बट इफ द नेक्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू कम इज गोइंग टू बी योर क्लोन, तो जब वो पैसा खर्चा करेगा लोग वहां चले जाएंगे, राइट? तो इफ यू ओनली आर ड्रीमिंग ऑफ जस्ट क्रिएटिंग monthly active users, or you know or just total subscriber base, तो ये स्ट्रेटेजी चल सकती है। पर अगर आपको DAU चाहिए, डेली एक्टिव यूजर्स चाहिए, या आपको लोग चाहिए जो स्टिक करें, आपको कोई ना कोई अपनी डिफरेंशिएशन सोचनी पड़ेगी। बिना डिफरेंशिएशन के पैसा उड़ाना मुझे लगता है कि वो क्राइम है, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, लोग आएंगे, ट्राई आउट करेंगे, पर उसके बाद फिर वो चले भी जाएंगे। In fact, yesterday I was reading this article about Ashneer Grover starting a fantasy gaming portal, हाँ, क्रिक पे। तो उसमें एक एंड व्हाट आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड टू नो कि इसमें अलग क्या है। अगर Dream11, MPL एंड 50 और हैं, तो इसमें अलग क्या है? वन ऑफ द डिफरेंशिएटर्स दैट ही हैज बिल्ट, येट टू बी टेस्टेड कि वो काम करेगा कि नहीं, व्हाट ही हैज बिल्ट इज कि you can use the platform to pay tips to your favorite player। मान लीजिए कल CSK और गुजरात टाइटंस का मैच था अहमदाबाद में, है ना? हाँ। एंड मान लीजिए मैंने अपनी फैंटेसी लीग में राशिद खान को रखा था, एंड राशिद खान ने कल अच्छा परफॉर्म किया, उसने कुछ विकेट्स भी लिए और लास्ट में कुछ रन्स भी मारे, और मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हुआ। हाँ। तो हिज इंसाइट इज कि वी आर अ सेलिब्रिटी ऑब्सेस्ड नेशन, एंड देयरफॉर हम लोग अपना चढ़ावा जरूर देते हैं अपने भगवान को। सो देयरफॉर वी वुड वांट टू गिव सम अमाउंट ऑफ टिप फॉर राशिद खान। नाउ आई डोंट नो हाउ इज ही गोइंग टू मेक इट रीच देयर एंड व्हाट इज द, बट ही इज सेइंग कि आप टिप कर सकते हैं, एंड हिज पोर्टल विल अर्न सम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन फी ऑन दैट। एंड हिज गेम देयरफॉर इज कि जितना मैं पैसा कमाऊंगा एज कमीशन ऑन द बेटिंग, आई विल अर्न सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी ऑन टिपिंग। या एंड वो टिपिंग करके आई विल बी एबल टू क्रिएट groups ki there is this group which worships Dhoni and therefore would want to tip Dhoni whenever Dhoni does well, and they will put in big quantities वगैरह वगैरह। So हाँ। that's the route that he seems to be taking. Now I'm happy with the fact कि यार उसने कुछ तो differentiation सोचा है। Now हाँ। whether that will work out or not, whether it appeals to somebody like you or not is different, but some differentiation has been built। तो डिफरेंशिएशन बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। या यू कैन हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दैट कुड बी योर ओनली डिफरेंशिएशन, की कोई और बात नहीं कर रहा था मैंने किया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ ना कुछ अपने में अलग बनाना ज़रूरी है। या देन द सेकेंड पॉइंट इज कि एक बार आपने डिफरेंशिएशन बना ली, देन इट इज़ ऑल अबाउट सेइंग कि MVP करके, नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज माय विजन एंड व्हाट इज द मनी दैट आई हैव, दैट विल डिटरमाइन मैं कितने लोगों तक पहुंच सकता हूँ, राइट? देयर कुड बी अ स्लो एंड स्टेडी वे, या लाइक पीपल टॉक अ लॉट अबाउट जीरोधा, कि हाँ। देव गोन स्टेडीली, उन्होंने कोई फाइट नहीं मारी है बहुत ज़्यादा पैसे वैसे रेस करने की, पैसे स्पेंड करने की, देव ग्रोन स्टेडीली। नाउ जीरोधा ऑल्सो कुड हैव गॉन टू द सेम नंबर इन 3 months बाय स्पेंडिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड पुटिंग इट ऑन IPL, कर सकते थे। हाँ। तरीके दोनों वाजिब हैं, है ना? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर विजन, हाउ फास्ट यू वांट टू रीच देयर। बट आई थिंक इट्स अ परफेक्टली लॉजिकल थिंग टू, नंबर वन, हैव अ डिफरेंशिएशन इन योर हेड कि इसलिए लोग मेरे पास आएंगे, एंड नंबर टू, पुट अ रोड मैप की है, मेरे को ना 10 लाख लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे चाहिए, या 10 लाख लोगों के पास मेरा प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, एंड मेरी विजन है कि 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में पहुंचूंगा। दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर एज अ स्टार्टअप फाउंडर आप इसमें क्लियर हैं, इट डजेंट मैटर कि आप पॉडकास्ट बना रहे हैं उनके लिए, या उनके लिए गेमिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, या उनके लिए एक चॉकलेट बना रहे हैं, ऑल थ्री ऑफ देम विल गेट डिटरमाइंड बाय दिस, कि मेरा डिफरेंशिएशन क्या है, कितने लोगों तक मुझे पहुंचाना, और मेरा अग्रेशन कितना है, एंड देन एवरीथिंग एल्स गेट्स डिटरमाइंड बाय दैट। आपका अग्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो आप बोलेंगे यार इतने सारे लोगों तक इमीडिएटली पहुंचना है, मुझे पैसे चाहिए, तो देन हाँ। यू विल गो अग्रेसिव बिहाइंड फंडिंग। इफ यू विल से कि मेरे को अग्रेशन नहीं है, आराम से पहुंचेंगे, दिक्कत नहीं है, आई विल ग्रो ऑर्गेनिकली, देन यू विल इन्वेस्ट बिहाइंड गेटिंग द राइट सेट ऑफ कंज्यूमर्स, making your product with them, giving them some kind of a benefit so that they could refer
you to more people, and thereby your tribe keeps growing, etc., etc. So those are the two things: differentiation, and then your vision and aggression behind it. राइट, राइट, अंडरस्टूड। अभी मुझे ये एक और जो नया टॉपिक है वो जो स्टार्टअप्स बहुत तरीके से बात करते हैं और मैंने देखा भी हुआ है, लाइक आई एम इनटू सम ऑफ दोज आल्सो, कि Hmm. कम्युनिटी बिल्डिंग, Hmm. कम्युनिटी ऑफ योर ऑडियंसेस, कि Yeah. जैसे रेज कॉफी का अपना एक रेजर करके एक है कि जहाँ पे Hmm. दे हैव कम्युनिटी ऑफ कॉफी लवर्स, ऐसा Hmm. Hmm. ग्रोथ स्कूल जिसके आपका ऊपर कोर्स है, उनका भी Hmm. एक कम्युनिटी टाइप है कि जहाँ पे दे गिव वैल्यू टू देयर स्टूडेंट्स। सो देर आर टू क्वेश्चंस। Hmm. एक कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी Hmm. फॉर स्टार्टअप्स, बिकॉज कम्युनिटी का मतलब बहुत वेगली ऐसे थ्रोन अराउंड है कि कम्युनिटी बना दो हाँ. ऐसे करके। हाँ. और दूसरा कि अगर मुझे एक अच्छी तरीके से कम्युनिटी बनानी है, एक तो मैं चीज समझ गया हूँ इससे कि इससे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने ग्रोथ स्कूल का कम्युनिटी के बाद मैंने ये नोटिस किया हुआ है मैंने अपने आप के, कि जब भी मैं कोर्सेज के बारे में सोचता हूँ, ग्रोथ स्कूल कम टू माई माइंड फर्स्ट, Hmm. कि ग्रोथ स्कूल अच्छा इनको क्या करे, क्योंकि हर मेरे ईमेल इनबॉक्स में वैभव सिंह का मेल होगा, या तो फिर ग्रोथ स्कूल के आपका मैंने कुछ आर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग लिया है तो आर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग के ऊपर कोई टिप होगी मेरे उसके अंदर। आई एम इनटू व्हाट्सएप आल्सो, सो आई एम इनटू 2-3 जोन्स की जहाँ पे ग्रोथ स्कूल मुझे दे रहा है, सो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल तो आ रहा है, Yeah. बट what are the other benefits of it? So two questions: what is the right meaning of community, and top of the mind recall के सिवा other benefits community के क्या है? See, I think the primary reasons for communities, regardless of आप startup हैं, यहाँ पे एक बड़े brand हैं, in the olden days also क्या होता था, Facebook used to do this community. हाँ, तब आपको रीच मिला करती थी कि सब जिसने लाइक कर दिया उसके अंदर आपको रीच मिला। अब वो रीच वगैरह सब खत्म हो गई है। You have Insta communities, you have lots of things. Yeah, I think the primary reason of building a community is to find a certain set of people who believe in your proposition. Because they are believers, you ideally want to keep them charged up so that they become your marketeers as and when the need arises. सो हाँ, आप खुद तो ग्रोथ स्कूल के बारे में सोचते ही हैं, कोई और अगर आपसे पूछेगा तो भी आप ग्रोथ स्कूल ही बोलेंगे। तो मेरे लिए ऑनेस्टली इट्स अ चीपर वे ऑफ मार्केटिंग टू द पर्सन जिसको आप बताने वाले हैं। तो हाँ, एज अ ब्रांड ओनर आई एम अनलॉकिंग व्हाट आई कॉल एज नेटवर्क इफेक्ट। राइट, कि उत्सव को बताऊंगा ना तो उत्सव के जो 20 लोगों से जब उत्सव बात करेगा वो उनको बताएगा, और उसके लिए मेरे को उत्सव को पे नहीं करना पड़ा। राइट। सो देयर फॉर आई वॉन्ट टू ऑलवेज हैव दिस सेट ऑफ बिलीवर्स अराउंड माई ब्रांड, जिनके थ्रू मेरी बात बहुत सारे और लोगों तक सीमलेसली, ऑर्गेनिकली, विदाउट एडवर्टाइजिंग पहुंच जाए। हम्म, या सो दैट्स वन। Number two, because these guys are significant believer in me, want them to stay with me. Yeah. So because I want them to stay with me, I want to keep them hooked. And therefore, I want to keep them part of a community so that they keep talking to me. Yeah. राइट, Third piece is जैसे मैंने बोला कि हर चीज का जवाब किसके पास है? कंज्यूमर के कस्टमर के पास। पास। है ना? अब उत्सव वगैरह मेरा बहुत ही वोरेशियस कंज्यूमर है, तो मैं चाहूंगा कि उत्सव के साथ मेरा ऐसा जुड़ाव रहे कि मेरे को जो भी कुछ करना हो मैं फटाफट उत्सव को फोन करके पूछ सकूं कि यार मैं ये ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, आपका क्या क्या ख्याल है इसके बारे में। ठीक है। और आई विल कीप पोस्टिंग आइडियाज, कीप जजिंग रिएक्शंस। नाउ यू विल बी हैप्पी कि यार एक ब्रांड मुझसे एंगेज कर रहा है, आई एम डिटरमाइनिंग द फॉर्च्यून ऑफ अ ब्रांड। या आई विल बी राइट, हैप्पी कि यार मेरे जो कस्टमर हैं वो मुझे डायरेक्ट फीडबैक दे रहे हैं। इससे बढ़िया विन विन सिचुएशन हो ही नहीं सकता ना उत्सव। हम्म, तो इट मेक्स इमेंस सेंस to keep some of your core customers close to your heart. Yeah. Recently, I was interacting with this outlet. बड़ौदा में है क्या? आई एम नॉट श्योर बड़ौदा में है, अहमदाबाद में तो है, कॉल्ड इट्सी बिट्सी। आपने सुना उसके बारे में? हाँ इट्स एन है, इट्स अ बिट सी, यहाँ पर भी है इट्स एन आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर। आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर, या। इट्स अ बैंगलोर बेस्ड कंपनी, doing very well, make some very nice interesting products, etc., etc. So I had met their founders
फॉर समथिंग, या तो उनसे जब मैं बात कर रहा था, एंड आई देन मेट सम ऑफ द स्टोर ओनर्स एटसेट्रा, सो दे हैव अ थ्राइविंग कम्युनिटी ऑफ हॉबीइस्ट्स इन एवरी सिटी। राइट। जो लोग कुछ ना कुछ टाइप की हॉबी परस्यू करते हैं, चीज़ें बनाते हैं वगैरह वगैरह, उनके साथ इनका एक थ्राइविंग कम्युनिटी है ऑन व्हाट्सएप। या हाँ। ऑफ कोर्स दे कीप सेंडिंग देम अपडेट्स अबाउट प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह। बट वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग यूज केसेस दैट आई हर्ड अबाउट, कि जब इट्सी बिट्सी रियलाइज करता है ना कि उसकी ऑनलाइन सेल्स किसी एक पर्टिकुलर शहर से बढ़ती जा रही हैं, और वहां पे या तो उनके स्टोर कम है या स्टोर है ही नहीं, तो दे डिसाइड कि यार वहां पे स्टोर खोलने की ज़रूरत है। जब उनको ये ज़रूरत होती है, वो इमीजिएटली क्या करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो उनकी कम्युनिटी बनाते हैं, जो भी वहाँ के हॉबीस्ट वगैरह हैं, और उन हॉबीज से ही पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए आपके यहाँ स्टोर खोलना हो तो कहाँ खोले। तो ऑलरेडी उनके पास 15 सजेशन होते हैं। Then they have their own real estate guys who go around the town, and you know who accompanies their real estate guys? वो हॉबीज जो होते The हैं। hobbyist. वो- तो और क्या अच्छा हो सकता है इससे कि यार आपको वहीं का लोकल नॉलेज वाला एक बंदा जो आपके ब्रांड के लिए पैशनेट है, वो आपकी सब कुछ मदद कर रहा है, तो यू एक्चुअली हैव कंज्यूमर राइट बिसाइड्स यू। हम्म। एक बिजनेस के लिए इससे ज्यादा ड्रीम सिनेरियो हो ही नहीं सकता, है ना? यू डोंट नीड टू सेकंड गेस द कंज्यूमर, ही इज सिटिंग राइट बिसाइड्स यू, राइट? राइट। देयर इज दिस फेमस eccentricity of Jeff Bezos that gets talked about. हाँ। Yeah, where he says कि every meeting ना one chair is kept empty by Jeff Bezos. Do you know why? हम्म। He says this chair represents the consumer. हम्म। So he says कि यार keeping a chair empty reminds everybody in the room कि you are deciding for this, the person sitting on this chair. So this is the consumer in the room. Always remember. It's a symbolic way of saying please remember the consumer. Never become arrogant to say I am making this decision now consumer will follow, ऐसा नहीं होता है, हाँ। राइट? सो आप अलग अलग एग्जाम्पल में ये समझेंगे कि कंज्यूमर सेंट्रिसिटी is such an integral part of marketing, that making communities, keeping them close, keeping them dear is actually a significant part of doing that. राइट। वाई बिल्डिंग अ विजन एंड मिशन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमने बहुत बार देखा होगा कि बस वो तो सिर्फ एक दीवार के ऊपर टंगा होता है, कोई बना दिया है, क्या तो गूगल से लगा लगा दिया होगा। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, या तो ऐसा होते हैं बस इट इज जस्ट देयर ऑन द यू नो वॉल, या तो फिर लूजली थ्रोन आउट है कि हाँ ये है ये कुछ, बट वो फॉलो नहीं होता। बट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर विजन एंड मिशन, कि वो कंपनी या तो फिर वो ब्रांड बनाने में आपको काम आए। सो जो आप दीवार वाले देखते हो ना, वो एक्चुअली उनके ऊपर विजन मिशन लिखा होता है, वो होते नहीं है। हाँ। वो सिर्फ 100। वो जब आप एक बड़ा 6,000 करोड़ की कंपनी बन जाते हो और आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट में कुछ डालना होता है तो आप डाल देते हो। हाँ। बट you know mission and vision and mission actually is more specifically about what kind of world and what kind of consumer state do you envisage, and therefore find the role for your brand. तो मेरे को तो हम्म। ऐसा लगता है उत्सव कि जब आपने अपना पॉडकास्ट भी शुरू किया होगा, तो आपने अपने दिमाग में कोई चीज सोची होगी कि यार मुझे पॉडकास्ट क्यों करना है। यू मस्ट हैव थॉट कि भाई इंडिया इज अ थ्राइविंग स्टार्टअप इकोनॉमी, and therefore there are too many lessons to be learned from startups, and there are sufficient people out there who want to learn from them, and therefore can you become the medium or the conduit of taking those lessons to them? Fair? हम्म। Now when you imagined that, therefore you did this, so therefore your end state was that you want a learning India which is absorbing whatever lessons are coming from the startup and hopefully using it productively, right? So that's your mission. Now if you start with that mission, what it helps you do, Utsav, is it helps you make decisions very clearly. So now when you wanted to do only startups, then the decision is clear कि किसको बुलाना है, startup वालों को बुलाना है. हम्म। Therefore you don't need to think about other people. हम्म। Yeah. क्या क्वेश्चन पूछने हैं स्टार्टअप्स के बारे में, क्वेश्चन पूछने हैं बिकॉज यू डोंट नीड टू वरी अबाउट अदर क्वेश्चंस, हाँ। राइट? किन लोगों को अपील करना है, उन्हीं लोगों को अपील करना है जो स्टार्टअप से सीखना चाहते हैं. सो योर चॉइस मेकिंग
becomes so clear and so easy that it actually makes your daily operations very very clear. And आपके केस में क्या है उत्सव, you might have a smaller team. When you have 100, 200,000, 6,000 people team, then it becomes even more important that what's your insurgent mission. If somebody on the ground has to make a choice between doing this or doing that, what should be their primary filter? If you don't give them a filter, they will use their own filter or they will use their own personal interest. So a vision or a mission should ideally be a filter. Right. Yeah. When I was in college, MBA college, 2006, I heard this talk by this gentleman called Guy Kawasaki. He was speaking at a forum organized by the Indus entrepreneurs. And Guy Kawasaki has been the chief evangelist at Apple. He was being considered for the job of CEO of Yahoo, etc., etc. Big guy. He now is a venture capitalist, owns a firm called Garage International. तो बहुत अच्छा स्पीच है. If you get an opportunity, and anybody who is listening to this should go and search it out. उसमें एक बहुत मजेदार चीज उन्होंने बोली. He says कि यार every organization should have a mantra, and mantra should be 3 or 4 words which tells everybody associated with the organization what do you do. Yeah, so now what he did was, just to bring it alive, जैसे Wendy's है ना, the fast food. हाँ. तो he read out the mission vision statement of Wendy's. Now it is like that, जैसा आपने बोला ना दीवार पे लगा हुआ वाला, कि we aim to create super value for our stakeholders and synergistically work with our vendors वगैरह वगैरह ऐसा करके एक $1,000 mission statement है. And then he said कि यार whenever I interact with somebody at Wendy's, I don't see them doing this. He said Wendy's mantra should be healthy fast food. Simple. That's what they do. Now, therefore, when you are at Wendy's, any position that you are working at, if you have to make a decision, you have to decide whether you are serving healthy, fast food or not. So, जो आप पूछ रहे थे कि विजन और मिशन का फायदा यही होना चाहिए कि it should help you take decisions. It should help you chart future way forward with clarity. And there is nothing wrong with evolving vision also. अगर आपको लगता है कि आगे का ये पाथ बेटर लग रहा है, बट आपका आज का मिशन विशन इसे अलाउ नहीं करता, तो आप अपने मिशन विशन को चेंज कीजिए, बट एक छोटा सक्सेंट रखिए, so that everybody in the company is clear why we are doing what we are doing. है ना. आप देखेंगे, एंड मेरे को ये सारे चीजें समझ में आती है जब मैं अपने आसपास के बिजनेसेस को देखता हूँ. आप जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हैं, ज्यादातर ब्रांड्स के लिए जोमेटो का अपना डिलीवरी बॉय आता है. डोमिनोज का क्यों नहीं आता? डोमिनोज का पिज्जा जोमेटो क्यों नहीं डिलीवर करता? डोमिनोज ही क्यों डिलीवर करता है बताइए? उनका मिशन विजन क्लियर है. दे वांट टू बी द बेस्ट डिलीवरी ब्रांड दैट्स आउट देयर, एंड देयरफॉर क्लियरली उनके आउटलेट्स का डिजाइन, आउटलेट्स का साइज, एंड उसी चीज को डिनोट करता है कि दे वांट टू बी प्राइमरली अ डिलीवरी बिजनेस, एंड देयरफॉर इफ डिलीवरी इज देयर बिग थिंग, दे विल नेवर आउटसोर्स इट. सो हैविंग अ क्लियर मिशन helps you make choices. एडवर्टाइजिंग भी जो परेश रावल के साथ उनकी आई थी 2011 में, हाँ. कि तानानानारी पिज्जा है फ्री, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, राइट? तो जब आपका मिशन विजन क्लियर होता है ना, तो मार्केटिंग, स्टोर डिजाइन, चैनल डिजाइन, हाउ विल यू ऑपरेट विद थर्ड पार्टी, सब क्लियर हो जाता है. दैट्स द पावर ऑफ क्लैरिटी. राइट, एक क्लैरिटी मिल जाती है. हाँ, और यही चीज ना सेम मैंने एक पॉडकास्ट किया था कोको एफएम के फाउंडर्स के साथ. उन्होंने यही चीज बोली थी कि एक एक लूजली थ्रोन एक आपका एक दायरा जैसा बन जाता है बड़ा सा, कि उसी के अंदर आपको रहना है, कि वी आर अ ऑडियो लेड प्लेटफॉर्म. तो कोई टीम में कोई ऐसा सोचेगा कि नहीं मुझे ये वीडियो बनाना है, करेक्ट, ये आप ऑडियो में क्या करना है क्या कर देता है. जैसे आपने बोला कि डेली ऑपरेशन उससे बहुत क्लियर हो गए. राइट, यू आर फ्रॉम एफएमएस दिल्ली, राइट? या और मैंने एमबीए अपने क्लासेस भी किए थे. वो अलग बात है कि मैंने एमबीए नहीं किया है अभी तक, बट लाइक व्हाट इज
गुड थिंग अबाउट दैट कॉलेज, क्यों एफएमएस इज एक प्रेस्टिजियस कॉलेज माना जाता है अपार्ट फ्रॉम आईआईएम्स एंड आईआईटीज ऑफ इंडिया? अब तक आपने शायद जान लिया होगा, मैं हर चीज को 2 या 3 पार्ट में तोड़ देता हूँ. दैट्स हाँ, माई दैट्स माई वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग आंसर्स वेरी क्विकली इन माई हेड एंड देन हाँ, एक्सप्लेनिंग. इसके भी हाँ, 2 पार्ट हैं. हाँ, हाँ. सो पहला है कि यूजुअली एंट्रेंस एग्जाम्स act as a great filter to the fact that FMS has a tough entrance exam. किसी टाइम पे इसका entrance exam CAT से अलग होता था. ओके. Yeah. So when I entered the college, 4 lakh people used to write the exam. 90 students used to get admitted. So the entry ratio was tougher than IIMs. Yeah. So one is that the filter itself ensures कि यार एक certain quality of people आ रहे हैं वहाँ पे. तो उसमें क्या है कि एक सर्टन क्वालिटी ऑफ पीपल आ रहे हैं तो ऑलरेडी कॉलेज का एक रेपुटेशन अच्छा हो जाता है कि यार जो भी लोग आ रहे हैं आप कितना भी बुरा पढ़ा लो कुछ अच्छा ही करेंगे. राइट. सो दैट्स वन पार्ट. सेकेंड पार्ट इज एकेडमिकली द कॉलेज इज नॉट एज rigorous or structured as an IIM. So an IIM possibly will be very progressive. Professors will be engaged significantly more with the industry. FMS में भी करते हैं पर उतना नहीं. And because it is affiliated to Delhi University, etc., the agility in syllabus, adoption of latest practices, etc., is lower. Number two, the kind of competition. So all MBA colleges, by and large, are relative grading, right? FMS is not. आपके absolute marks मिलते हैं आपको like you do throughout your schooling system वगैरह वगैरह. So therefore, that rivalry, that competition among students is not there. What it, however, offers, what's up, is that it's a college which thrives on maximizing whatever it has. It is a small campus. When I was studying in the college, it used to have one, two, three, four lecture rooms. That's it. Yeah. And then faculty rooms. That's it. Utna chota sa hi building hai uska, while it is in Delhi University, etc. So therefore, it pushes you to your limit to kind of maximize that campus, maximize whatever you have, to utilize it to your benefit. Now, जब आप placements कर रहे होते हैं उस college के अंदर, at one point in time you might have 15-18 companies on the campus. आपके पास 4 ही रूम है जिसमें से एक रूम में आपने सब बच्चों को बिठाया हुआ है वगैरह वगैरह. कुछ एक रूम में इंटरव्यूज चल रहे हैं. देन यू रिक्वेस्ट फैकल्टीज टू गिव देयर रूम. वो छोटे से कैंपस में आप सब कुछ कंडक्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह. सो व्हेन यू वर्क विद कंस्ट्रेंट्स ना, इट पुशेस यू टू बिकम स्मार्टर. या नंबर 2 पॉइंट का ही ये पार्ट है कि because it's a government college, you don't have too much resources available to you. A lot of the things are done by the students themselves. So let me give you an example. We used to have a body called Management Student Association, MSA. Yeah, I was the general secretary at that point in time in college. That's when I got to realize that कि क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सेटअप में है तो शाम को 6 बजे लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर सब बंद हो जाएगा क्योंकि उन लोगों को घर जाना है. तो 6 बजे के बाद दे यूज्ड टू बी ऑन माय पेरोल. So MSA would pay them. So we would gather money from the students and we would pay them. So after 6 p.m., a lot of the college staff was on payrolls of students. Now, when you are a student and you are running a payroll, you have people who are responsible, you're taking that responsibility, etc., etc., you suddenly grow up faster than others. You're actually running a mini company. Mini company, right? You are managing finances. You are talking to recruiters. So in most of the colleges, otherwise, the recruiters are spoken to by the placement advisor. The faculty involves themselves significantly. FMS में वो बहुत कम होता है. So the students work for the placement and all. So therefore, suddenly, the students are thrust with a lot of responsibility, which kind of makes them grow significantly faster than others. So therefore, the whole FMS experience is about not just gathering what they teach in management syllabus. It is also about maximizing from the resources that you have, which gives you emotional maturity of a different kind. इसलिए मेरे को लगता है कि that makes this particular facet makes that college a little bit more special than others. Right.
Right. In the beginning of a workshop, you said there are a lot of science behind advertising. क्योंकि Correct. जो एक वायरलिटी जाती है कोई भी एक एड की, वो बार बार आप कैसे रिपीट कर सकते हो, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, राइट? सो लाइक if you can explain to our audience what are some of those basic science behind virality, because we are living in this world that यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वो सब जगह पे भी लोग चीजें जो वायरल होती है या तो वैसे होती है वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं, एंड क्यों चीजें वायरल जाती है? uh, अगर मैंने वायरलिटी का साइंस बता दिया ना, हाँ। तो देन मतलब इधर आई विल बी शॉट डेड हाँ। और आई विल बी हायर्ड बाय द बेस्ट रिक्रूटर्स इन द वर्ल्ड। सी सी वायरलिटी का थोड़ा क्या है कि वायरलिटी, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन प्रिडिक्ट और क्रिएट वायरलिटी। ओके। देयर आर ऑब्जर्व्ड patterns that people have seen. Yeah. And I'll talk about two things here. हम्म। First is when I say there is a lot of science behind advertising, mean is that a significant part of advertising, if you do it in a scientific manner, you are more likely to succeed. Your probability of success goes significantly higher. Yeah. And that science has three pillars. Two pillars we have already spoken about: branding and marketing. Yeah. Third pillar is only about the fact that if you're a business owner, you need to be able to construct your path to purchase. आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, and whether that path to purchase goes via salience or does it go via imagery. What do I mean by that? जैसे if you are a bubble gum brand owner or a chewing gum brand owner, you know कि यार it's a 1 rupee 2 rupee candy. उसमें कोई बहुत ज़्यादा this limited benefit, limited offer that you can give. Usually those categories rely on salience, कि ऐसा कुछ बना दो कि लोगों को याद रहे, बस उतना काफ़ी है। जब याद रहेगा तो दुकान पे जाएंगे तो खरीद ही लेंगे। बियॉन्ड दैट ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। इसलिए वो राइट। सेंटर फ्रूट जीभ लपलपाई वो जीभ वाला कुछ। लपलपाई, अब हाँ। वो जीभ लपलाई में कुछ भी दिखाते हैं। राइट, हाँ। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटल अब वो जिंदगी, कुछ हाँ। भी दिखाते हैं ना, उसका ऐसा नहीं कि मेंटोस खा के आप वो सब करना शुरू कर दोगे। इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिंग क्लटर, breaking clutter in your head and making sure that there is the salience of those brands is very high. Then there is the mind measure or imagery route, which, for example, like I was speaking about Pepsi. Pepsi would like you to believe that it is the drink for youngsters. Yeah. Versus Coke, which is a drink for everybody. So Pepsi will do हर घूंट में swag है. Yeah. Nothing official about it. Yeah. यही है right choice, baby. Aha. So now these are the things that possibly an adult or a family might not say. So for a very, very long time, they have always said things which will make them endearing towards teenagers. So that's the imagery that they have created. So clear कि मेरे को ना इमेजरी बना के रखनी है और मेरे को टीनेजर से ड्रिंक करवाना है. सो देयरफॉर यू शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट योर पाथ टू परचेज इज. जब आप क्लियर हो जाएंगे ना, फिर आपकी जो मार्केटिंग जब आप डालेंगे तो वो बहुत साइंटिफिक हो जाती है कि किस टाइप की मुझे मार्केटिंग करनी है. राइट. सो दिस इज माय फर्स्ट थिंग अबाउट साइंस बिहाइंड द आर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग. एंड ऑब्वियसली उसके बाद जो पूरी स्क्रिप्ट बनती है, जो एड बनती है, या आपका जो भी डिजिटल क्रिएटिव बनता है, उसमें आर्ट है. हाँ। So somebody thinks about that idea, etc., etc. But there's a lot of science that goes behind it. Second part जो आपने असल में क्वेश्चन पूछा था, which was around virality. That's $1 million question उत्सव. And उसमें क्या है कि one of the core patterns that has been seen is that finally it is all about triggering a certain emotion in the consumer's heart and mind. Right. So I have seen things going viral because they are able to hit at a very, very emotional level. Some of them will make you laugh. Some of them will give you significant amount of joy. Some of them will bring tear to your eyes. Yeah. But all of them will move you in one way or the other. I have never seen anything logical getting viral. Yeah. So therefore, if you want to go viral, आप लॉजिक वगैरह साइंस लगाइए,
but then finally it has to be able to move the consumer emotionally, हाँ. really create a moment of emotional upliftment in their heart and their mind. Yeah, everything. And I think about examples. I have examples of all kind. Yeah, that go viral. So honestly, uske alawa, there are very few rules that anybody will be able to create on virality because there are none. हम्म. है ना? You as a consumer might find something really shareable, हाँ, and जो somebody else might मेरा फ्रेंड find नहीं some. करेगा. हाँ. हाँ, but एक चीज ट्रू है और ये चीज देखी गई है कि इट मूव्स यू इमोशनली फॉर श्योर. तो उस लेवल पे क्रिएटिव का काम करना क्रिटिकल है. लॉजिक देख के और एक साइंटिफिक स्पीच बना के नहीं होगा. Right. Okay then. Thank you so much Sudeep for doing this. I really had a blast. और मुझे ना बहुत कुछ चीजें जो आज मार्केटिंग के बारे में बहुत ऐसे वेगली पता थी, आपने उन चीज़ों को कंफर्म किया है कि अच्छा ऐसा नहीं होता, ये इस तरीके से होता है, जैसे नोइंग योर कस्टमर वाली चीज़ है. एंड दोस टॉपिक ऑफ ब्रांडिंग मार्केटिंग जो जिस तरीके से आपने समझाया, वो तो काफ़ी मेरे लिए बहुत बढ़िया था. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट. और आपके आपके साथ ना बहुत चीज़ें बातें हो सकती है. मैंने और भी कई सारे टॉपिक लिखे हुए थे कि आपके साथ मैं एड्स डिस्कस करूं, बट आई थिंक दैट्स द टॉपिक फॉर सम अनदर डे, जब आपको वापस बुलाऊंगा ऑन पॉडकास्ट एंड वी विल डिस्कस ओनली एड्स, जो फेमस एड्स है इंडिया की, वो हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर. श्योर. बट कैन यू जस्ट टेल आवर ऑडियंस कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पॉडकास्ट के ऊपर, एंड देन जस्ट से सब्सक्राइब टू द स्पॉटलाइट इंडिया. ओके. नहीं, मुझे बहुत मजा आया. I had lots of fun. As you can tell, I like talking about marketing, हाँ. advertising. I'm very passionate about sharing my point of view with people because I genuinely believe कि it will help. And I think yours is a great platform where you approach everything with genuine curiosity, to learn, to ask. And मुझे हाँ. ऐसा लगता है कि therefore I had lots of fun talking about all these things and thinking about variety of from my education to where I work today within हाँ. Pidilite, talking about all of that and sharing it with you as well as your listeners. So it was good fun. I would advise everybody to subscribe to the Spotlight. Uh, if you genuinely want to quench your thirst for curiosity, this is the platform to be. And Right. hopefully Utsav will now, after I've done good amount of marketing for him, will call me again someday. पक्का पक्का सर. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. Thank you, Utsav. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एपिसोड. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, आपको कुछ वैल्यू मिली हो, आपको कुछ नया जानने को मिला हो इस एपिसोड में से, देन मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस एपिसोड as much as you can, especially with your friends who has particular kind of interest in this kind of topics. And lastly, don't forget to hit that subscribe button. Thank you so much.